Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all students to this MCGM VTC online video session. And in this session, students, we are going to learn about inverse proportion in direct and indirect proportion and inverse proportion. And also we'll do here the practice set 38 in this session. So let us start by this presentation. बच्चों आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं माकूस तनासुब के बारे में, और हम यहाँ पर माकूस तनासुब के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर जो है तो 38 जो हमारा मशक़ी सेट है उसके बारे में हम यहाँ पर उससे कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं उससे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन से। एक इस एग्जाम्पल की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क इज रिक्वायर्ड हेयर। इफ द 4 वर्कर आर वर्किंग दे आर टेकिंग 60 days. If you will see here that if the 6 workers are working, they are taking 40 days to complete the work. If 10 workers are working, they are taking only 24 days. If the 15 workers are working, they are taking the time of 16 days of that work. So what you observe here, you observed here that as the number of workers increases, the number of days to complete a work, the product of the number workers and the number of days is constant. यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे जैसे मजदूरों की तादाद बढ़ती है, काम मुकम्मल होने के दिनों की तादाद जो है तो घटती जाती है। ठीक है, तो मजदूरों की तादाद और दिनों की तादाद का हासिल ज़र्ब जो है तो मुस्तकिल रहता है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ओके, यहाँ पर हमें याद रखना है बच्चों सबसे पहले कि when the value of one quantity increases, the value of the another quantity decreases. Okay, proportionately when the value of the first quantity decreases, the value of related quantity increases proportionately. And if the product of these two related quantities remains constant, then there is a relation of inverse proportion between the two quantities. Okay, so यहाँ पर आपको याद रखना है बच्चों कि जब एक मिकदार की कीमत के बढ़ने के साथ दूसरी मुताल्लिका मिकदार की कीमत तनासुब में घटती है, और जब पहली मिकदार की कीमत के घटने के साथ दूसरी मिकदार की कीमत तनासुब में बढ़ती है और दोनों मुताल्लिका मिकदारों का तनासुब मुस्तकिल रहता है, तो इन दो मिकदारों में माकूस तनासुब का ताल्लुक होता है। ठीक है, याद रखना है इससे हमें। तो ये बहुत ही ज़रूरी मालूमात थी बच्चों जो हमने आपकी गोशगुजार यहाँ पर की है। इसे आपको याद रखना है क्योंकि अब यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट हम यहाँ पर हल करने वाले हैं तकरीबन इसी का इस्तेमाल यहाँ पर हम देखेंगे। ओके, तो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 38. सो हियर इज द क्वेश्चन। 5 workers takes 12 days to knead a field. How many days would 6 workers take? How many would take? So यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि अगर 12 मजदूर एक काम को पूरा करने के लिए 70 दिन लगाते हो, एक खेत की खुरपनी सफाई के लिए 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? ठीक है, और 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? इस तरह से हमें यहाँ पर बताना है। तो सलूशन हम देखते हैं यहाँ पर।
क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आप देख रहे हैं इसे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है उस लिहाज से कि the number of workers and the days taken by them to complete a work in inverse proportion. ठीक है, तो let the 6 workers take x days. ठीक है, if the 12 workers are working, they are taking 12 days. If the same work will took place by 6 workers, so how many days they require to complete the work? So you will see here that x into 6 into x is equal to 5 into 12. So you will get here x is equal to 5 into 12 upon 6. So you will get here x is equal to 10. Okay, so you will see here that x 6 1 the 6 6 2 the 12, so 5 2 the 10 here. So 6 workers will take 10 days to complete that work. Okay, like this we can do the many questions. So similarly 15 into x is equal to 15 into 12. So 15 into 12 5 into 12 upon 15 means you will see here that 5 was the 5 5 3 is the uh, 15. So you will see here that we'll get here 4. So x is equal to 4 here. So you will see here that the 15 workers will take 4 days to complete the work here. Okay, like this we can solve many questions, students. Now here is another question which is on your screen. So you will see here that the Mohan Rao took 10 days to finish a book. Reading 40 pages every day, how many pages must be read in a day to finish it in 8 days? ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोहन राव ने रोज़ाना जो है तो 40 सफ़ात के हिसाब से एक किताब का मुताला किया, तो इस किताब की पढ़ाई 10 दिन में मुकम्मल होती है। वही किताब 8 दिन में मुकम्मल पढ़ना हो तो हर रोज़ कितने सफ़े पढ़ना होंगे? ठीक है, इस तरह से सवाल है ये। तो क्या करना होगा हमें यहाँ पर इसके लिए? तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है तो रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात और पूरी किताब के लिए दरकार दिन, इसका मुशाहिदा करना होगा। तो वो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पर? वो मिलेंगे हमें माकूस तनासुब में। इस तरह से हमें समझ में आ रहा है ना। द पेजेस रीड पर डे एंड द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द रीडिंग अ बुक आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, रोज़ाना पढ़े हुए सफ़ात और पूरी किताब पढ़ने के लिए दरकार दिन जो है तो माकूस तनासुब में है। इसलिए हमने यहाँ पर फ़र्ज़ किया कि 8 दिन में मुकम्मल किताब पढ़ने के लिए रोज़ाना पढ़े जाने वाले दिनों की तादाद x होगी, है ना। लेट द पेजेस रीड बाय x टू कंप्लीट द रीडिंग द बुक इन 8 days। ओके, सो यहाँ पर हम उसका एक टेबल बना लेते हैं। सो यू विल सी हेयर that number of pages daily reading and number of days required to read the book. If we are reading daily 5 pages, so we will get here यहाँ पर अगर रोज़ाना पढ़े जाने वाले सफ़ात अगर 40 है, ये सॉरी अगर 5 है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा फिगर हमारा गलत हो गया है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर 40 सफ़ात रोज़ाना हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो विल गेट 10 days टू कंप्लीट द वर्क। ओके, इफ वी आर रीडिंग x पेजेस देन विल टेक 8 days टू कंप्लीट द वर्क। ओके,
तो यहाँ पर हमें इस तरह से थोड़ा सा चेंजेस करने पड़े हैं. So let the pages read by X to complete reading the book in 8 days. Okay, so you will see here that X into 8 is equal to 40 into 10. So X is equal to 40 into 10. Okay, so you will get 40 into 10 upon 8. So you will see here that 8 ones are 8, 8 fives are 40. So 5 into 10 means X is equal to 50. So the answer will be 50 pages should be read to complete the reading the book. Okay, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8 दिन जो है तो में मुकम्मल किताब पढ़ने के लिए रोज़ाना 50 सफ़ात पढ़ना चाहिए, इस तरह से. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि मैरी साइकिल एट 6 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी लॉन्ग शी will she take to reach her aunt's house, which is 12 kilometer away, if she cycles at a speed of 4 kilometer per hour, how long would she take? यहाँ पर अगर हम ध्यान दें इस सवाल पर तो हमें मालूम होगा कि साइकिल चलाने की रफ्तार जो है तो 6 किलोमीटर फी घंटा है और इससे जो है तो 12 किलोमीटर के फासले पर वाक़ अपनी खाला के घर जाना है, तो इसे कितना वक्त लगेगा. ठीक है, अगर साइकिल की रफ्तार फी घंटा 4 किलोमीटर हो तो उसे कितना वक्त लगेगा. ठीक है, इस तरह का सवाल है ये. तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मखसूस फासला तय करने के लिए दरकार वक्त और रफ्तार जो है तो माकूस तनासुब में होते हैं ना. सो द स्पीड एंड टाइम टेकन टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. सो लेट शी टेक x hours, इसलिए हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया कि उसने जो है तो उसने जो ये सफ़र तय करना है उसे. सो लेट शी टेक x hours टू कवर 12 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर. हमने ये यहाँ पर अज्यूम किया है ना. लेट एंड y आर टू कवर द सेम. ओके, अब हमने यहाँ पर क्या फ़र्ज़ किया है कि 6 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से 12 किलोमीटर फासला तय करने के लिए x घंटे और 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से वही फासला तय करने के लिए y घंटे वो लेती है. ठीक है, सो द टेबल इज शोइंग अस इफ द डिस्टेंस इज 12 kilometers and x hours is the timing. If the speed is 6 kilometer per hour, so if the speed is 4 kilometer per hour, time she took is y hours and distance is 12 kilometer per hour. Okay, so here is the table for time, speed and distance. Okay, now we are going to put out here the formula which is for distance है ना. डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे फासला बराबर वक्त ज़रब रफ्तार होता है ना. सो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. सो डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट. ओके, so you will see here that 6 into x is equal to 12. So x is equal to 12 upon 6 means 6 1s are 6, 6 2s are 12. So x is equal to 2. Okay, so you will see here that x is equal to 2. And now we'll do for the another one. Y 4 into y is equal to 12. So y is equal to
12 upon 4 means 4 1 is a 4, 4 3 is a 12, so x is equal to 3. So you will see here that Mary takes 2 hours at the speed of 6 kilometer per hour, and she takes 3 hours at the speed of 4 kilometer per hour. तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से 2 घंटे लगते हैं, और 4 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जो है तो 3 घंटे लगते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम इन सवालात को अपने तौर पे हल कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगला सवाल है, उसमें देखेंगे आप कि एक सरकारी गोदाम में अनाज का ज़ख़ीरा 4000 लोगों को 30 दिन के लिए काफ़ी होता है, तो वो अनाज का ज़ख़ीरा 6000 लोगों के लिए कितने दिनों तक काफ़ी होगा। ओके, सवाल इस तरह से है, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयरहाउस lasts 30 days for 4000 people. How many days will it take for 6000 people? ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लोगों की तादाद और दिनों की तादाद जिनके लिए अनाज का ज़ख़ीरा काफ़ी होता है वो देख रहे हैं माकूस तगय्युर में, है ना। ठीक है, so the number of people and the number of days that the stock of grain last are in inverse proportion. Okay, so you will see here that let the stock of grain last x days for 6000 people. यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि वो अनाज का ज़ख़ीरा 6000 लोगों को x दिनों के लिए काफ़ी होता है ना। तो यहाँ पर हम ये गोशवारा बना लेते हैं इस तरह से टेबल। तो देखेंगे आप, द नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ डेज, सो इफ़ 4000 people are using that stock, they required 30 days to complete that quota. If 6000 people are using that same stock, so how many days it will take? So यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरह से टेबल बनाया है, और इसके बाद आप देखेंगे here the number of person x, the number of distance is days is constant. ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दिनों की तादाद x है और लोगों की तादाद जो है तो मुस्तकिल है ना। तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिया है। सो नाउ यू विल सी दैट 4000 into 30 is equal to 6000 into x. So 4000 into 30 upon 6000 is equal to x. So you are supposed to mark out it, and you will see here, if you are doing 2 0 cancel here, so 31 are 30, 32 are 6, 32 are 20 here, so 2 2s are 4 here, 4 here. Okay, so here we will get the 20. So x is equal to 20. So you will see that the stock of grain will last for 20 days. ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है कि अनाज का ज़ख़ीरा जो है तो 20 दिन के लिए यहाँ पर काफ़ी होगा, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो इस तरह से हम बच्चों ये सवालात यहाँ पर हल कर सकते हैं। So hope students that you will understand this all questions. So do this from yourself. Okay, best of luck. Assalamu alaikum.